کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ میں آتشزدگی، فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، دم گھٹنے سے 2 افراد کی حالت غیر، آتشزدگی سے 3 گاڑیاں مکمل طور پر جل گئیں۔ آگ النجیب موبائل مارکیٹ کی 7ویں منزل پر گاڑیوں کی پارکنگ میں لگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آتشزدگی کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی ہے، کہا آتشزدگی کے اسباب اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ بلوچستان میں تیل اسمگلنگ سے دہشت گرد روزانہ 4 ارب روپے کما رہے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر اور اسمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بلوچستان میں دہشت گردوں سے متعلق بڑا انکشاف، قومی اسمبلی اجلاس کے دوران خطاب میں کہا، آج BLA جیسی تنظیموں اور اسمگلنگ مافیا کا اتحاد ہو چکا۔ ایرانی تیل پر فی لیٹر اسمگلرز اور BLA میں حصہ طے ہے۔ اس کرپشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران سے 40 روپے لیٹر تیل لے کر کراچی میں 200 روپے فی لیٹر بیچ رہے ہیں۔ بلوچستان کی جغرافیہ کی وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ ان دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ریاست کی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا یہ کس بات کی ناراضی ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کریں، یہ دشمن کی ماں پر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان پر کسی ابہام کے بغیر ایکشن ہونا چاہیے۔ جیسے مار کے حق میں دشمن کو ذلت ملی، ان دہشت گردوں کو بھی ایسے ہی انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ چن چن کر وار، فتنوں کو پڑی مار، فورسز تیار۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران مزید 22 دہشت گرد جہنم واصل۔ گزشتہ رات تعاقب کے آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران جہنم واصل دہشت گردوں کی تعداد 177 ہو گئی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی اطلاع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ KP کی پہلی باضابطہ ملاقات، 1 on 1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی، اہم امور پر گفتگو، محسن نقوی اور مزمل اسلم کی بھی شرکت۔ اعلامیہ جاری، وزیر اعظم نے KP کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت میں تعاون پر زور دیا۔ صوبے میں امن کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے، کہا قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کی کوشش مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاوش جاری رکھیں گی۔ صوبائی حکومت بااختیار ہے KP میں صحت اور تعلیم کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی حکومت KP کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ کیا کہا سہیل نے PM کے روبرو، وزیر اعظم سے کسی سیاسی معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب، ملک یا صوبہ نہیں ہوتا، لوگ امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے۔ 26 ارب روپے سابق فاٹا پر لگا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا میٹنگ کر کے مسائل حل کریں گے، ابھی مزید اجلاس ہوں گے، فیصلے ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ 4 ارب نہیں 5300 ارب کا معاملہ سامنے آنا چاہیے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ نہ ہونے سے بھارتی براڈ کاسٹرز کو بھاری نقصان کا خدشہ۔ پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے بھارتی براڈ کاسٹرز کو تقریباً $500 ملین 141 ارب روپے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ میچ کی گیٹ منی سے ICC کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ محتاطاً اندازے کے مطابق T20 ورلڈ کپ سے ہونے والی آمدنی کا نصف پاک بھارت میچ سے ملتا ہے۔
ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड लाहौर से कोलंबो पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान शामिल, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के अरब मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखसूस मुतालिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशेवराना ताउन पर तबादला ख्याल, पाक फौज और लीबिया के अफवाज के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जानिब से लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के आज़म को दोहराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। DGISPR तुर्बत के तलबा से क़ुरबत। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक खैर मकदम किया। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। असातिज़ा ने कहा DGISPR के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवान नस्ल है। तलबा ने कहा DGISPR के साथ नशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुलाकात हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बायस बनेगी। नशिस्त के इख्तिताम पर शुरका ने कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हेड क्वार्टर और EV कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रोवीक्स के जदीद तरीन चार्जिंग स्टेशंस, ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट्स का मुशाहिदा किया गया। इलेक्ट्रोवेस्ट चार्जिंग सिस्टम जल्द अज जल्द शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। 1500 नई बसों के लिए टाइम लाइन तलब कर ली गई। कहा इलेक्ट्रो बस के जरिए आवाम को आरामदेह सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों को इंतज़ार करना पड़ता है, मज़ीद बसें बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। कहा सिंध को पोलियो फ्री बनाना हम सब की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सारे मुस्लिम ममालिक से पोलियो वायरस खत्म हो चुका। उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को ये तलकीन करें कि ये पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए जाएं। पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आला सतही कमेटी का इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वक़ाब, कमिश्नर कराची समेत मुतालिका हुकाम की शिरकत। इजलास में KMC की तरक्याती मनसूबों और स्कीमों का तफसीली जायज़ा। तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का फैसला। नासिर शाह ने कहा नामुकम्मल और ताख़ीर का बायस स्कीमें अवाम की परेशानी और लागत में इजाफे का बायस बनती हैं। अवाम की परेशानी के मद्देनज़र जल्द फैसले किए जाएंगे। आप छोटे मोटे धरने देकर समझते हैं कि जीत जाएंगे। शाहराव की बंदिश और धरनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धरने और लोगों को तकलीफ पहुंचाने से मसाइल हल नहीं होंगे। साने हाथ पर सियासत नहीं बल्कि इंसाफ और मुतासिरीन की अमली मदद ही हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हाफिज नईम उर रहमान ने हल्फ उठाया, ना सीट छोड़ी। हाफिज नईम असम्बली आइन या सीट छोड़े। जिन्हें लोग काबिज टोला कहते हैं वो मुंतखब होकर आए हैं। हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहां फैसले करने हैं फैसले करेंगे। जिस अफसर को लगेगा काम ठीक नहीं कर रहा हटा देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबरा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत। कहा बानी से मुलाकात मशरूत नहीं करनी चाहिए। अगर बानी PTI को अस्पताल ले जाने से पहले ख़ानदान को या किसी पार्टी अहदेदार को आगाह कर देते तो क्या हर्ज था।
सदर काजिकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काजिकिस्तान के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काजिकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मेहमान सदर का पाकिस्तान काजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्के है। सदर आलमी बैंक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक ग्रुप की तवील उल मुद्दती शराकतदारी और मुल्क की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए इसके आज़म को सराहा। बिलखुसूस 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए एक जामिया कसीरुल जहती और मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील देगी। इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तनदही के साथ अमल पैरा है। साफ पानी में गलाजत फेंकी जाती है और वही सब पी रहे हैं। पानी जखीरा करने के लिए छोटे डैम्स बनाना वक्त की जरूरत है। हम आइंदा 2 साल में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। फजला को ठिकाने लगाने का तरीक़ाकार भी तय करेंगे। आबी ज़खायर के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी तकरीब से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का खिताब। कहते हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। फ़िज़ाई और आबी आलूदगी मौजूदा दौर के बड़े मसाइल हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पेलिकेशंस की ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर इत्तलात का सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील पर जोर। कहा सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जदीद तकाज़ों से हम आहंग मनसूबा है। मनसूबों से बयानिया साज़ी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुरतब की और मौसर हिकमत अमली तय करने में मदद मिलेगी। 35 जोड़े 35 शादियां। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की जानिब से अटक में 35 इज्तिमाई शादियों की तकरीब। तमाम जोड़ों को नकद सलामी दी गई। गवर्नर पंजाब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब से खिताब में कहा सफ़ेद पोश वालिदैन बच्चियों की शादी दरख्वास्त गवर्नर हाउस में दे सकते हैं। इज्तिमाई शादियां पूरे पंजाब में की जाएंगी। आई बसंत छाई बसंत, हर दिल की एक ही आवाज हो वो काटा। लाहौर में बसंत मेला तैयार, शहर पतंग की रंगों में रंग गया। लाहौर में बसंत ने खोले सयाहत के रास्ते। मुख्तलिफ ममालिक से पतंगबाजी के शौकीन अफराद की लाहौर आमद। मोची गेट लाहौर में पतंगों के गुड्डों और डोर की फरोख्त। शहरियों ने रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लगा लिया। हर छत बसंत का त्यौहार मनाएगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाजत इसलिए दी कि लोग अपने घरों की छत पर बसंत बनाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वजाहत। कहा पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। बसंत मनाने की इजाजत सिर्फ आवाम को दी गई है। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमत बसंत को महफूज बनाना चाहती है ताकि लोग इस खूबसूरत त्यौहार को एंजॉय कर सकें। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में ज्वेलर्स की दुकानों में डकैती की वारदात। 8 से जायद मुलजिमान ज्वेलर्स की 4 दुकानों को सफाया कर गए। मार्केट चौकीदार ने पुलिस को बताया मुलजिमान गायरूफ और मोटरसाइकिल पर आए थे। वारदात सुबह सवेरे हुई है। कराची के इलाके गार्डन में भत्ताखोरों के खिलाफ रेंजर्स और SIU पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुकाबले के बाद 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया से मुंसलिक वसीउल्लाह लाखो, जमील चांगा और अब्दुल समद काठियावाड़ी ग्रुपों से है। सोने की कीमत मजीद घट गई, बहुत घट गई। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से भी सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 21,500 रुपए कमी। फी तोला सोना 4,90,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 18,433 रुपए कमी हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,20,406 रुपए हो गई।
इंसानियत का सबसे बड़ा स्मगलर कौन? दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में भारतीय स्मगलर्स मुलव्वस। भारतीय स्मगलर्स और जराइम पेश अफराद आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग, जाली डिग्री नेटवर्क्स और दहशतगर्दी के वाज़ेह अलामत बनते जा रहे हैं। भारतीयों की गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत कई ममालिक सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हो गए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय स्मगलर्स की मुनज़्ज़म जराइम पेशा सरगर्मियों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीयों की बैनुल-अक़वामी अय्यारियाँ, भारतीय शहरियों की मेज़बान, मुल्क में बढ़ते जराइम ने मोदी के नाम नहाद तरक्की और खुशहाली के फ़रेबज़दा बयानी की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। गुज़श्ता 2 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद भारतीय शहरी अमेरिका में गैर कानूनी दाखिले के दौरान गिरफ्तार हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तस्दीक, माहिरीन के मुताबिक भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन का बढ़ता रुझान आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी बन चुका। नाअहल मोदी की नाक़िस और नाकाम पॉलिसी ने हज़ारों भारतीय शहरियों को कानून शिकन रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता किसी कानूनी दस्तावेज के बजाय मुनसिम जबर, खौफ और आमरीत की खुली अलामत। तालिबान रजीम शफाफ हुक्मरानी या अवामी राय के बजाय ज़बरदस्ती फैसले मुसलत करने की रवायत को मजीद मजबूत कर रहा है। काबिज तालिबान रजीम का ये नया फौजदारी ज़ाब्ता ख़वातीन, अक़लियतों और इख्तिलाफ़ी राय रखने वालों के लिए खतरे की वाज़ेह घंटी है। अमरीकी जरीदा दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान रजीम के फौजदारी ज़ाब्ते में आज़ाद और गुलाम कानून तकसीम का शर्मनाक पहलू बेनकाब कर दिया। जहाँ जहाँ अफगान वहाँ छापे, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज किया जाए। आज इस्लामाबाद नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ऑपरेशंस डिवीज़न का जनरल इजलास, वफाकी दारुल हुकूमत में क्राइम की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। अफसरान को जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने के लिए नए टास्क सौंप दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी, मशकूक अफराद, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चेकिंग को यकीनी बनाने का हुक्म। आलमी इस्लामी फौजी वक्त आया पाकिस्तान। इस्लामी ममालिक के फौजी इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म को इलेक्शन का 17 रुकनी वक्त इंसदादी दहशतगर्दी के लिए एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। तरबियती प्रोग्राम के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी के लिए जदीद तरीन हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा सकेगा। सऊदी वक्त का दौरा पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद की अलामत है। इस्लामी दुनिया के नजरें पेशराना फौजी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी के मजबूत इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान की तरफ मरकूज हैं। डेयरी की सनत के अच्छे दिन आ रहे हैं। SIFC की मुआवनत और ग्रीन कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इक़दाम। SIFC पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे को जदीद अंदाज पर इस्तेमाल करने के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। ग्रीन कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव जदीद ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। GCLI के तहत अमरीका और ब्राज़ील से आला नस्ल की मवेशियों की खेप गुज़िश्ता अरसे में पाकिस्तान लाई गई। और फैशन के आलमी मरकज पेरिस में फैशन वीक की रंगीन रानाइयां उरूज पर। मॉडल्स की दिलकश अदाओं और पुरएतमाद बॉस ने रैंप पर 4 चांद लगा दिए। लबनानी फैशन डिजाइन मनाल इजाज की नई कलेक्शन ने महफिल लूट ली।